Hello friends, myself Chetan Thakur. Today I learn standard 10th English medium subject maths. So last time we have to discuss exercise 6.3. Now in this lecture we have to discuss about exercise 6.3 question number 14 and 15. Only two questions are remains. So in question number 14, detail are given. Side AB and AC and the median AD of triangle ABCD are respectively proportional to the side PQ and PR and median PM. यानी कि यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिया गया है A, B, C. In similar way here P, Q and R. A, B and C. तो यहाँ पे आपको ये पी एम है एल मीडियन. इन सिमिलर वे इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज अ मीडियन. सो मीडियन देयर फोर बी सी लाइन डिवाइड बाई टू पार्ट्स. इन सिमिलर वे हियर क्यू आर लाइन डिवाइड बाई टू पार्ट्स बाई मीडियन पी एम. देन प्रूव दैट triangle ABC is similar to triangle PQR. Now we have to some editing on this figure. So at some distance at point E and similar way here at point distance N. So another points. So E N is a two points. In triangle ABC same situation. ABC AD is a median, therefore BD equal to DC. In similar way here in triangle ABC same situation. In triangle PQR PM is a median, therefore QM इक्वल टू MR. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है. अब AE नेक्स्ट AD इक्वल टू D, यानी कि आप जो हमने जो ऐसे ड्रॉ किया है लाइन बोथ आर अ सिमिलर. इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ AD एंड D इज सेम. इन सिमिलर वे हियर PM एंड MN बोथ डिस्टेंस है वो सेम. तो ड्रॉ AD equal to DE and similar way here draw PM equal to MN. इस तरीके से आपको यहाँ पे ये दिया गया है. Now we have to discuss about both part are equal. So suppose मुझे AD AE equal to लिखना हो, AE का रिलेशन आपको दिखाना हो, AE यानी कि होल लाइन AE का रिलेशन दिखाना हो AD के साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं. AE मीन्स AD का ये डिस्टेंस का हम डबल करेंगे तो आपको पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा. यानी कि AE इज इक्वल टू 2AD. ये बात हुई. तो ये जो आपका फिगर होगा वो क्वाड्रिलेटर होगा. ABEC इज अ क्वाड्रिलेटर एंड डायगोनल्स. इट मीन्स AE and BC is a diagonals. BE and AE is opposite side. वो आप यहाँ पे लिखते हैं. BE and AC both have equal because opposite sides of parallelogram. तो यहाँ पे ये जो है वो ABEC ये मैंने लिखा वो सिंबल है पैरेललोग्राम का सिंबल, यानी कि आपका एक पैरेललोग्राम हो गया. Therefore opposite sides are equal. It means B and AC both have a equal. The complete हुआ. In similar way both part have a equal. So फिर से हमें लिखना हो PN. PN is equal to हम क्या लिख सकते हैं 2PM. So quadrilateral PQNR ये हो गया. उसके डायगोनल्स इक्वल है, देयरफॉर वो आपका हो जाएगा. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट डायगोनल्स आर इक्वल. एंड ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर.
ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी हुई आपकी पैरेललोग्राम की। तो ये पी क्यू एन आर ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, यानी कि क्यू एन जैसा है वैसा आपको मिलेगा पी आर, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये दोनों ऑपोजिट साइड है। अब जो आपको क्वेश्चंस में दिया गया है वो लिखते हैं कि ऑलरेडी सिमिलर टू अनदर ट्राइंगल, यानी कि आपकी जो ए बी साइड है, ए बी साइड इज सिमिलर टू पी क्यू, ए बी इज सिमिलर टू पी क्यू, ए सी इज सिमिलर टू पी आर एंड मीडियन ए डी इज सिमिलर टू पी एम. These are given in questions. So by equation 1 and 2, it means first equation and second equation, Qn की जगह पे आप Pr लिख सकते हो and B की जगह पे आप AC लिख सकते हो. Both are equal. So therefore AB is equal to PQ. Then BE in place of AC we can take BE, in place of PR we can take QN, and in place of AD, so AD के आगे 2 है, यहाँ पे PM के आगे 2 है, यानी कि हम ये 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन विल बी सेम. हमने जो यहाँ पे रिएक्शन अप्लाई किया है वही यहाँ पे किया है, यानी कि both part, it means this all portion will be same because both have a multiply by 2 to cancel, so remains part is same. Now in this, using this equation, AD 2AD in place of 2AD we can take A, in place of 2M we can put, so by using this term we get AB divided by PQ is equal to BE divided by QN is equal to A divided by PN. So by using side theorem we can say that ABE, triangle ABE is similar to triangle PQN. ABE is similar to triangle PQN. ये आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा. Both triangle will be congruents. So corresponding parts are also equal. So angle B is equal to angle Q. Angle A is similar to angle P. तो ये दो स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे. आफ्टर कॉन्ग्रुएंस वी कैन से दैट एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एन. ए बी ई ये जो पूरा ट्राइंगल था वो हमने सिमिलर दिखाया, ये पार्ट से पूरे पार्ट से सिमिलर दिखाया. लास्ट में हमें दिखाना है ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ऐसा दिखाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दिखाया ए बी ई इज सिमिलर टू पी क्यू एन. तो ये पार्ट से जो आपका एंगल ये है, इट मीन्स बी ए ई इज सिमिलर टू एंगल दिस एंगल, इट मीन्स क्यू पी एन लिखा हमने. नेक्स्ट बी ए डी एंगल ई तक एक्सटेंड किया था, ओनली एक्सटेंड बाय पॉइंट ई, सो इन सिमिलर वे पॉइंट एम, क्यू पी एम एंगल विल बी सेम. सो यही इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पे. आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट स्टेप हमारा, इन सेम मैनर्स वी कैन प्रूव दैट, यानी कि इस तरीके से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एन. उसके लिए लिखेंगे इन द सेम मैनर. इन द सेम मैनर मीन्स ये जो हमने प्रोसेस किया है वो ओनली लेफ्ट साइड के लिए किया है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई ऑन अ राइट साइड पार्ट. सो वी कैन सिमिलर वे प्रूव दैट ए सी ई इज सिमिलर टू नेक्स्ट पी आर एन. सो इन दिस केस एंगल सी ए ई is also similar to PRPN is equal to angle RPN. फिर से हम एक बार करेंगे. CAE इन प्लेस ऑफ E तक एक्सटेंड किया है तो उसको सिर्फ D तक एक्सटेंड करेंगे. सो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको RPM. एडिंग दिस टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4
and here equation number 3. So adding equation 3 and 4, we get right hand side add by right hand side, left hand side add by left hand side. So we get QPM plus RPM, ये मिला. अब ये जो दोनों एंगल का एडिशन है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, सो गिव होल एंगल BAC is equal to angle QPR, whole angle A and whole angle P. Now triangle ABC and triangle PQR, we get AB is divided by PQ is equal to AC divided by PR, and angle BAC is equal to angle QPR. तो ये जो हमारा रिलेशन हुआ साइड एंगल साइड theorem, we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15. सो वर्टिकल पोल of length 6 cm cast as shadow 4 meter long on the ground. It means this is a vertical pole, shadow 4 meter. So here 4 meter and height of this pole is 6 meter. In time, tower cast shadow 20 meters long. Find the height of tower. तो यहाँ पे ये जो आपको बात कर रहे हैं हम वो पोल की बात कर रहे हैं. अब यहाँ से बात करेंगे वो हम टावर के लिए बात करेंगे. तो इस तरीके से टावर है, उसका शैडो की हाइट आपको दी गई है 28 मीटर्स. सो फाइंड हाइट ऑफ दिस टावर. सो कनेक्ट. सो वी गेट फिगर ऑफ ट्राइंगल. सो नेम दिस ट्राइंगल ABC, वर्टिकल देयरफॉर 90 डिग्री, वर्टिकल टावर देयरफॉर 90 डिग्री, PQR. Find the height of tower. It means find the height of tower. It means find the value of PQ. So here AB, we can write here AB is a vertical pole and AC वो आपके लिए शैडो हो जाएगा. इन सिमिलर वे हियर PQ is a vertical tower and QR is a shadow. So angle C and angle R both represented elevation on the sun. Angle of elevation on the sun. जो angle of elevation का टॉपिक हम सीख चुके हैं. Both the shadow measure same time, so angle will be same. दोनों का टाइम सेम है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल सन थ्रू होगा. तो एंगल C इक्वल टू एंगल R, उसका रीजन क्या होगा? बोथ रिप्रेजेंटेड एलिवेशन ऑफ द सन. Both same time represented angle of elevation of the sun. सन का जो शैडो है इस तरीके से होगा. तो यहाँ पे शैडो के थ्योरम सीख चुके हैं हम. तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि आपकी पोजीशन डाउन पार्ट में होगी, ऑब्जर्वेशन एबो पार्ट में होगा. तो यहाँ पे सन होगा, जो भी पार्ट पे सन होगा वहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी सेम मिलेगा. So in triangle ABC and triangle PQR, angle C equal to angle R. ये एक स्टेटमेंट आपको मिल गया. नेक्स्ट एंगल B is equal to angle Q. उसका रीजन राइट एंगल, बोथ हैव 90 डिग्री, therefore right angle. So by using angle theorem, triangle ABC is similar to triangle PQR. रीजन एंगल थ्योरम. सो एंगल थ्योरम से हम लिख सकते हैं AB डिवाइड बाई PQ, BC डिवाइड बाई QR. अप्लाई वैल्यू, AB की वैल्यू 6 डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 28. सो वी गेट सब्जेक्ट PQ को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो 6 इंटू 24 डिवाइड बाई 4 इस तरीके से होगा.
सो पी क्यू ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा तो 6 इंटू 4 42 मीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर्स। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे और थ्योरम को भी साथ में ले लेंगे। तो ये आपके मैक्सिमम कवर करने की ट्राई करेंगे, 2 डेज में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट पे समाएंगे। तो 6.5 एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। सो 6.4 एंड 6.5 ये 2 एक्सरसाइज बाकी रहेंगी। उसमें नेक्स्ट आप आगे जाओगे तो एक पाइथागोरस थ्योरम का टॉपिक है, तो वो टॉपिक में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और उसमें भी 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो सीखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में टोटल 4 थ्योरम है, तो उनमें से आपको एक 1 कंपलसरी एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।